गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जोड़ा साडा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स दैट इज़ एल्फा बीटा एंड गामा। पिछले लैक्चर में आप पढ़िया है कि एल्फा आप किनू कहते हैं। एल्फा तुहाडा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। बीटा बीटा इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड गामा गामा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। हुण तुसीं इन तिन्नां दे विच रिलेशन देखना है भी इन तिन्नां दे विच की रिलेशन हैगा, ताकि जे एक सानू पता होवे तो दूजे दी वैल्यू तुसीं फाइंड आउट कर सकते हैगे हो न्यूमेरिकल सॉल्व करन दे विच। तो आपां सब तो पहला रिलेशन फाइंड आउट करने वास्ते एक क्यूबॉइड लेंदे हैगे हैं, क्यूब लेंदे हैगे हैं जिहदी तीनों साइड्स जिहड़ियां हैगियां बराबर, यानी कि उहदी लेंथ भी एल होएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू एल, उहदी ब्रैड्थ भी एल होएगी और उहदी हाइट भी एल होएगी। ठीक है बच्चों, सारियां उन्हां दी उहदियां साइड्स जिहड़ियां हैगियां बराबर होएगियां। लेट अस सपोज दैट द क्यूब जो दिस क्यूब है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ L0 ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T0। ਜਦ ਹੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ L0। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ T ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਤੋਂ T ਡਿਗਰੀ 0 ਤੋਂ T ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਨਵੀਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ L2। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੋਇਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਹੀਟਿੰਗ ਥਰੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ, ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕਿਊਬ ਦੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ L0 ਸਕੁਅਰ। 0 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਊਬ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ L ਕਿਊਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਵੋਲਿਊਮ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਆ ਗਈ L क्यूब। मीनस लेंथ का जे तुसी क्यूब लेंदे हो तो तुहाडे कोल वॉल्यूम आ जाएगी, अगर उहदा स्क्वेयर लेंदे हो तुसी तुहाडे कोल एरिया आ जाएगा। तो एट T इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये तुहाडियां रीडिंग्स हैगियां। जब तुसी इस क्यूब नूं हीट करदे हो T डिग्री सेंटीग्रेड दे उत्ते तो उहदी न्यू लेंथ जिहड़ी हुंदी हैगी है वो बन जाती है LT। मीनस ਉਹਦੀ एक्सपेंशन हो जाती हैगी, एक्सपैंड करके ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ LT। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ LT ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿਲ ਬੀ LT ਕਿਊਬ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ LT ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਥ L0 ਮੀਨਸ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ ਐਲਫਾ ਡੈਲਟਾ T, ਵੇਅਰ ਐਲਫਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਲਟਾ T ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤਾਂ LT ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਸਕੁਅਰ 1 ਪਲੱਸ ਐਲਫਾ ਡੈਲਟਾ T ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ LT ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇਗਾ AT ਔਰ L ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ L0 ਸਕੁਅਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈਗਾ A ਸਕੁਅਰ
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो तुहाडे कोल की आ गया 1 प्लस एल्फा स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। देखो बच्चों एल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होंदी हैगी है तो एल्फा स्क्वेयर भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होएगा। जे असी 0.1 का स्क्वेयर लेंदे हैगे हैं तो इट कम्स आउट भी 0.01। तो 0.1 नालों 0.01 बहुत ज़्यादा छोटा हैगा। तो ये टर्म नूं तुसी निगलैक्ट कर सकते हो, छोटी होने करके आपां इहनूं छड्ड सकते हैगे हैं। तो साडी इक्वेशन की बन जाती है हुण एरिया ए टी मीनस नवा एरिया जिहड़ा बनिया हैगा दैट इज़ इक्वल टू A0 इनीशियल एरिया प्लस 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। ये जिहड़ी साडी इक्वेशन आई है ये तुहाडी इत्थे रिलेशन तो आई हैगी है। पर सानू पता हैगा जब कोई सुपरफिशियल एक्सपेंशन होंदा हैगा उहदे नाल साडा रिलेशन की बनदा है कि नवा एरिया किहदे बराबर हुंदा है इनीशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी वेयर बीटा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन दे नाल साडा रिलेशन की बन जाता हैगा ए वाली इक्वेशन 3। हुण दोनों ही चीज़ां एरिया हैगी है, एरिया ने ये भी नवा एरिया है ये भी नवा एरिया हैगा, सेम बॉडी का हैगा तो दोनों नूं बराबर होना चाहिए। जब तुसी इक्वेशन 2 और 3 नूं इक्वेट करते हैगे हो तो तुहाडे कोल की आ जाता हैगा दोनों दी राइट हैंड लैफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई, राइट हैंड साइड तुहाडे कोल आ गई ए वाली। हुण देखो A0 कॉमन है तुसी ये कढ़ सकते हो, अंदर की बच गया 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी और 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। 2 एल्फा डेल्टा टी ते 1 प्लस बीटा डेल। हुण 1 1 फिर कैंसल हो जाएंगे, 2 नहीं कैंसल होएगा, डेल्टा टी कैंसल हो जाएंगे। तुहाडे कोल की आ गया 2 एल्फा इज इक्वल टू बीटा। फ्रॉम हेयर यू विल गेट एल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। तो सानू रिलेशन पता लग गया एल्फा ते बीटा दे विच की रिलेशन है एल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। ठीक है बच्चों। हुण जे आपां उहदा इक्वेशन नंबर 1 जिहड़ी साडी आ सीगी जिहड़ी सानू इनीशियल लेंथ दे विच रिलेशन देंदी सी, नवी लेंथ जिहड़ी ते पहली उहदी लेंथ उहदे विच की रिलेशन सी उस लेंथ नूं अगर आपां उहदा क्यूब लवांगे दोनों साइड दा तो साडे कोल की आ जाऊगा वॉल्यूम आ जाऊगी क्योंकि L क्यूब की होंदी है वॉल्यूम। तो दिस विल बी द न्यू वॉल्यूम, VT विल बी द न्यू वॉल्यूम, V0 इज़ द इनीशियल वॉल्यूम जो बिना टैंपरेचर इनक्रीज किते तुहाडी पहला वॉल्यूम सीगी। ते इधर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी दा होल क्यूब। तो क्यूब दा फार्मूला हैगा तुहाडे कोल A प्लस B दा होल क्यूब तुसी लगाना हैगा। तो दिस क्यूब प्लस एल्फा स्क्वेयर डेल्टा टी क्यूब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A होंदा तुहाडा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वेयर B प्लस 3B स्क्वेयर A। तो तुहाडे कोल आ फार्मूला आ जाएगा तुहाडा खोल के। तो ये विच एल्फा स्क्वेयर बहुत छोटा होएगा, इन्हों तुसी निगलैक्ट कर सकते हो इस टर्म नू और ए वाली टर्म नू भी तुसी निगलैक्ट कर क्योंकि एल्फा क्यूब की वैल्यू भी उहदे नालों बहुत छोटी होगी। तो साडे कोल रिलेशन की बन जाता है VT इज़ इक्वल टू V0 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी। ये साडी टर्म बच जाती है। दैन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन VT इज़ इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी दिस इज़ योर क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन दे नाल साडे कोल रिलेशन आंदा हैगा कि जिहड़ी फाइनल तुहाडी वॉल्यूम हैगी है दिस इज़ रिलेटेड टू इनीशियल वॉल्यूम एज V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दोनों साइड्स तुहाडियां वॉल्यूम ही हैगियां तो इस करके लैफ्ट हैंड साइड तुहाडी जे बराबर है तो तुसी राइट हैंड साइड नूं भी बराबर करोगे तो तुहाडे कोल रिलेशन आ जाता है V0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। तो हुण V0 तुहाडा कट जूगा दोनों साइड तो तुहाडे कोल की बच गया 1 प्लस 3 एल्फा
डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी 1 फिर तुहाडा इत्थों दोनों कट जूगा अंदर की डेल्टा टी भी तुहाडा कट जाएगा दोनों साइड तो अंदर बच गया तुहाडे कोल 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा सो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 तो तुहाडे कोल रिलेशन आ गया तीनों दे विच कि अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3 ये तुसी रिलेशन याद रखना है अगर तुसी रेशो दी फॉर्म च लेंदे हो अल्फा इंटू बी इस टू बीटा इंटू गामा किहदे बराबर हैगा 1:2:3 जे कोई तुहानू एक चीज़ पता हैगी है तो तुसी दूजी चीज़ निकाल सकते हो मीनस तुहानू जे बीटा गिवन हैगा तो तुसी अल्फा निकाल सकते हो भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 या तुहानू गामा गिवन हैगा अल्फा निकालना है तो गामा बाई 3 इज इक्वल टू अल्फा ਆਪਾਂ एक एग्जाम्पल देंदे हैगे हैं मान लो एन आयरन रेलवे लाइन जिहड़ी हैगी है 30 मीटर लॉन्ग हैगी है वो कहता बाई हाउ मच इट्स लेंथ इनक्रीजेस इफ इट्स टैंपरेचर इज रेज्ड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड वो कहता जे आप टैंपरेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करिए तो वो लेंथ कितनी इनक्रीज करेगी और तुहानू अल्फा की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर आयरन क्योंकि वो नेचर ऑफ द मटीरियल ते डिपेंड करता कि मटीरियल जिहड़ा किस चीज़ का बनया होया हैगा तो ये चीज़ तुहानू गिवन हैगी है हुण तुसी की तुहानू पता है ओरिजिनल लेंथ कितनी हैगी है 30 मीटर टैंपरेचर कितना उन्होंने बताया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो इनक्रीज इन लेंथ कितनी लेंथ होती इनक्रीज हुई लेट अस सपोज डेल्टा एल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर तो तुहाडे कोल अल्फा गिवन हैगा तो सानू रिलेशन पता है अल्फा किदे बराबर है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द टैंपरेचर राइज तो अल्फा की वैल्यू गिवन है चेंज इन लेंथ असी एक्स ले ली है ओरिजिनल लेंथ 30 है तो तुहाडा राइज इन टैंपरेचर कितना है 50 इस चीज़ की वैल्यू कट के तुहाडे कोल एक्स की वैल्यू आ गई 18 मिलीमीटर मतलब इन्नी लेंथ जिहड़ी हैगी है उहदी इनक्रीज कीती है दूजा तुहाडा जिहड़ा एग्जाम्पल हैगा उहदे विच फिर उहने की फाइंड आउट करन वास्ते कहा है लेंथ तो वो कहता स्टील रॉड इज ग्राउंडेड एंड polished to a length of 10 सेंटीमीटर when the temperature is 25 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है जब टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सीगा तो लेंथ कितनी सीगी 10 सेंटीमीटर वो कहता व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन इट्स टेंपरेचर इज रेज टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड हुण जिहड़ा टेंपरेचर है तुहाडा 25 तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड रेज किया गया तो उन्हें कहा कि नवी लेंथ कितनी होएगी तुहाडी ओहदी तो उहदे विच अल्फा की वैल्यू तुहानू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिता गया हैगा तो अल्फा तुहाडे कोल आ गया हैगा ओरिजिनल लेंथ उन्होंने 10 सेंटीमीटर बोली सी इनिशियल टैंपरेचर 25 सेंटीमीटर है फाइनल टैंपरेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है तो चेंज इन टैंपरेचर की होएगा फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 275 डिग्री सेंटीग्रेड ओके आप ले लेंगे लेट द फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी एल जी लेंथ चेंज होएगी नवी लेंथ जी बनेगी वो एल हो जाएगी तो वह रिलेशन सानू पता है एल इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी तीन रिलेशनस तुहानू मैं याद करने वास्ते कहे सीगे कि नवी लेंथ जी बनती है वो पुरानी लेंथ नाल किवें रिलेटेड हैगी है तो तुसी आ रिलेशन याद रखना है बस हुण तुसी वैल्यू सबसटीट्यूट करती इनिशियल लेंथ 10 दी हुई हैगी है तुहानू अल्फा की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻6 और चेंज इन टैंपरेचर तुहाडे कोल कितना हैगा 275 इन्हूं सॉल्व करके तुहाडे कोल इन लेंथ जी नवी बन के आई है दैट इज़ 10.022 सेंटीमीटर इस तरह तुसी नोमैरिकल सॉल्व कर सकते हैगे हो अगला नोमैरिकल साडे कोल हैगा कि एक मैटैलिक शीट हैगी है जिहदी लेंथ 100 सेंटीमीटर दिती हैगी है ते ओ 10 सेंटीमीटर ब्रॉड है मीनस ओदी विड्थ कितनी हैगी है 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तुसी एरिया ओदा दिता होया तुहानू कि इट इज़ इनक्रीज्ड बाय 3.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर
find the coefficient of linear expansion of the material। ਹੁਣ ਉਹਨੇ coefficient of linear expansion find out ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਓਰੀਜਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3.6 ਇੰਟੂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ठीक है, तो बीटा तुहाडे कोल आ गया चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू टैंपरेचर राइज। वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे तुहाडे कोल बीटा दी वैल्यू आ गई। हुण तुसीं कढना तां एल्फा हैगा, तो एल्फा और बीटा दे विच तुहानूं रिलेशन पता है, बीटा इज इक्वल टू 2 एल्फा, तो इत्थों तुहाडे कोल एल्फा आ जाऊगा बीटा बाई 2। इस तरह तुसीं आ न्यूमेरिकल्स जिहड़े हैगे आ कढ सकदे हैगे हो। ठीक है बच्चों, हुण तुहाडे कोल हैगा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। ये जिहड़ा न्यूमेरिकल हैगा इहदे विच जिहड़ा राइज इन टैंपरेचर हैगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मटीरियल ऑफ द शीट व्हेन न्यू टैंपरेचर, जिहड़ा न्यू टैंपरेचर हैगा दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीनस जिहड़ा जितों हीट अप किया हैगा तो वह कितना हैगा तुहाडा 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टैंपरेचर। हुण तुहाडे कोल हैगा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। हुण सानूं तो पता है सॉलिड्स तो एक्सपैंड करते ही, सिमिलरली लिक्विड्स भी एक्सपैंड करते हैं जब आपां उन्हां नूं हीट करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड गेन energy through the heat, they vibrate, starts vibrating with the greater velocity, hence their kinetic energy increases and they एक्सपेंड। उसी तरह जिमें सॉलिड्स के विच जब मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते हैं तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज़ करती है। मॉलिक्यूल्स जिहड़े हैगे ग्रेटर एंपलीट्यूड नाल वाइब्रेट करते हैगे और ग्रेटर एंपलीट्यूड नाल वाइब्रेट करन नाल उन्हां दा जिहड़ा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हुंदा हैगा वो इनक्रीज़ कर जाता है, और जिहड़ा वो इनक्रीज डिस्टेंस है वो एक्सपेंशन शो करता हैगा। सो लिक्विड्स जिहड़े हैगे हैं दे एक्सपैंड मोर दैन द सॉलिड्स। ठीक है, पर उन्हां दी एक्सपेंशन गैसिस नालों घट होंदी है। सॉलिड्स नालों लिक्विड्स ज़्यादा एक्सपैंड करते हैगे हैं पर गैसिस नालों घट करते हैगे। अगर लिक्विड की आपां गल करते हैगे हैं, एक मरकरी जिहड़ा हैगा वो लिक्विड अपना नॉर्मल स्टेट दे विच लिक्विड फॉर्म दे विच हुंदा हैगा ते रूम टैंपरेचर दे उत्ते। ते जद तुसी इहनूं तुसी देखिया होना आम आपां क्लीनिकल थर्मामीटर दे विच जिहड़ा मरकरी यूज़ हुंदा हैगा, ते जद भी आपां सानू टैंपरेचर हुंदा हैगा ते असीं जद मूँह दे विच थर्मामीटर लगांदे हैगे आ तो थर्मामीटर दे विच जिहड़ा मरकरी हैगा वो राइज़ करना शुरू कर दिंदा। वो क्यों शुरू कर दिंदा है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड whenever there is increase in temperature। जब भी टैंपरेचर दे इन टच जब भी वो मरकरी आएगा तो ओदा एक्सपेंशन होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स गेट द काइनेटिक एनर्जी। दूजी आपां गल करते हैं कि वाटर ऑल्सो एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जब भी आपां पानी नूं बॉयल करते हैगे हैं तो वो भी अपनी पुजी जिहड़ी जिन्नी वो जगह लेंदा सी वो तो ज़्यादा वो जगह लेनी शुरू कर देंदा है। और दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन क्रैकिंग द रॉक्स एंड मैसनरी पर्पस। मोर ओवर इन ऑटोमोबाइल इंजन्स वाटर एक्सपेंशन एक्ट एज अ कूलेंट सिस्टम। कूलेंट सिस्टम के अंदर भी वाटर जिहड़ा एक्सपैंड करता हैगा उस चीज़ नूं तुहानूं यूज़ किया जाता हैगा। नैक्सट इज़ एक्सपेंशन ऑफ गैसिस। गैसिस भी एक्सपैंड करदियां जदों हीटअप होंदियां हैगी, जदों उन्होंने एनर्जी मिलती हैगी है। दे हैव वीक वंडरवॉल फोर्सिस ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने दे विच जिहड़ी फोर्सिस होंदी ऑफ अट्रैक्शन होंदी बहुत ज़्यादा वीक होंदी है। वो ईजीली मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेंदे हैगे and they starts vibrating with greater velocity, hence gases expand। तीनों का जिहड़ा प्रोसीजर हैगा मैथड है ऑफ एक्सपेंशन सेम है, बट
ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਪੈਂਡ सबसे ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਲਿਕਵਿਡ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡਸ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, देयर इज लार्ज राइज इन ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਗੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ with a very small rise in temperature, therefore they are very sensitive। ਦੂਜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ is also used in thermometer which expands with the rise in ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਗਲਾਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਟਲ ਥਿਨ ਕੰਚ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਫੀ ਥਿਕ ਕੰਚ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰਿਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੰਪਰੈਸ ਕੂਲਿੰਗ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਸ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ of your liquids, gases and solids and how their coefficients are related to each other. Thank you.